Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope that you are doing great. So students, today we are going to start chapter number 1, that is known as physical quantities and its measurement. So today we are not going to study about what is physical quantities and how we can measure it, but I will give you a short review on it. Then I'll tell you what is physics, what is the importance of physics, what is the definition of physics, what are the achievements of scientists, how they work on physics, what they get it through physics, and what are the branches of physics, okay, and how many kinds they are divided and how many types we can study physics. So students, what is physical quantities and what is physical quantities? Those quantities that are measurable is known as physical quantities. Those quantities that are measurable is known as physical quantities, and measurements are those instruments that are used to measure these quantities. Now, as we know that we are living in the universe, and there are so many things that is uncountable. Some things are countable and some are uncountable. For example, if you see how many stars on the sky have, you can't count that because they're uncountable, right? So as far as if you count how many hairs in a human body have, you can't count that, right? On their head, right? Hairs are uncountable. Then for example, you go in a huge forest, right, and count each and every leaves. For example, you started counting, then what happened? Some leaves get down, some break, some winds, some new growth. So this is thing that they are uncountable. Some things are countable, some are uncountable. So the things that the measurements that have been used to read these things, so different measurements are used, okay? So what is physical quantities? Those quantities that are measurable is known as physical quantities. Now, introduction of physics. Now, what is physics? You people have been known कि फिज़िक्स एक बहुत ज़्यादा ही बोरिंग सब्जेक्ट होगा, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, इसमें ठीक है सब कुछ को लगता है, बट फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ एक्चुअली स्टडी ऑफ नेचर, ज़िंदगी को स्टडी करना, दुनिया को स्टडी करना, यूनिवर्स को स्टडी करना, प्लांट्स को स्टडी करना, प्लांट्स को नहीं, स्काई को, सन को, मून को, प्लैनेट्स को, ज़िंदगी कैसे चल रही है, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है, नेचर से रिलेटेड फिज़िक्स में आती है, ठीक है। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दुनिया कैसे बनी, ये क्यों है, ज़मीन पे जो है चीज़ें क्यों गिरती हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से, ये फिज़िक्स है, ठीक है। नाउ आसमान में हर एक प्लैनेट अपने ही शेल में क्यों ऑर्बिट में अराउंड घूमता है, क्यों रिवॉल्व करता है, दिस इज़ फिज़िक्स, ठीक है। मून जो है ज़मीन पे क्यों नहीं गिरता, दिस इज़ फिज़िक्स। सूरज एक जगह से घूरूब होता है, एक ही जगह से क्यों निकलता है, दिस इज़ फिज़िक्स, ठीक है। चाँद रात को क्यों निकलता है, चाँद 14 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है, छोटा होता है, बड़ा होता है, क्यों होता है, अपना शेप क्यों चेंज करता है, अपनी जगह क्यों चेंज करता है, स्टार्स, ठीक है, ये सब गैलेक्सी, सैटेलाइट, सब कुछ फिज़िक्स में आता है। सो इंसान को हमेशा ही क्यूरियस था, ठीक है, कि वो जाने कि क्यों और वजह क्या है इस फंक्शन की, ठीक है, कि चीज़ें ज़मीन पे क्यों गिर रही हैं, आसमान, ज़मीन जो है सूरज के गिर्द चक्कर क्यों लगा रही है, यूनिवर्स बनी कैसे आखिरकार, ठीक है। ये सब कुछ क्यूरियोसिटी के लिए इंसान ने क्या किया, तहकीक शुरू की, तो वो उसे नो हाउ हुआ कि रीज़न क्या है इस यूनिवर्स के बिहाइंड, ईच एंड एवरीथिंग के बिहाइंड रीज़न क्या है, ठीक है। अल्लाह ने कायनात बनाई है, ठीक है, अल्लाह के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन हम लोगों को नो हाउ हो जाता है कि अल्लाह ताला ने ये किया है, इसकी चीज़ का मकसद क्या है, इंसान इस दुनिया में आया है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसकी रहने का मकसद क्या है। सो बेसिकली फ़िज़िक्स इज़ ऑल अबाउट द नेचर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या होता है, ठीक है, इसका नो हाउ आपको पता चल गया। नाउ डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ नोन, ईच एंड एवरीथिंग, दुनिया में हर चीज़ मैटर से बनी हुई है, ठीक है, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो डील करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है, हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ कर रही है,
हम सबको पता है, ठीक है, चाहिए होती है, हम लोग को भी चाहिए होती है, जानदारों को चाहिए होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को एनर्जी। मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और उनके दरमियान में आपस का रिलेशनशिप क्या है, ईच फिज़िक्स में हम सब कुछ ये पढ़ते हैं, ठीक है। फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ नेचर, study of matter, how they are related, ठीक है, to each other, this is physics, but this is the simplest definition, ठीक है। study of nature, study of matter, energy and their mutual relationship, ठीक है। now this is the physics. now the study of physics is to understand the world around us. what is physics? हम लोग नेचर को स्टडी करें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वर्ल्ड को स्टडी करें, ठीक है। द वर्ल्ड इनसाइड अस एंड अराउंड अस, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, बियॉन्ड क्या चल रहा है, ठीक है। फिज़िक्स ये है। फिज़िक्स के को इन्वेस्टिगेट किया है किसने, फिज़िक्स में इन्वेस्टिगेशन होती है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, ठीक है, रॉकेट्स क्यों है, एनर्जी क्यों है, साउंड वेव्स कहाँ से है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्स में, ठीक है। तो इसको इसमें हम लोगों ने फिज़िक्स ने हमने इसको जो है स्टडी किया, ठीक है। नाउ हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स को डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स क्या है, कि एटम बम कैसे बना, ठीक है, एटम बम की इन्वेंशन कैसे हुई, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एक्सरे क्या होता है, लेज़र्स क्या होते हैं, ठीक है, गामा रे क्या होती है, ये सारी इन्वेंशंस हुई। एक्सरे को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, लेज़र्स हम कैसे यूज़ करते हैं, सारी फिज़िक्स की इन्वेंशंस है, ठीक है। फिर कंप्यूटर्स क्या है, टीवी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स क्या है, मोटर्स, साइकिल्स, व्हीकल्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, टीवी, स्पीकर्स, ठीक है, एरोप्लेन्स, बसेस, रेलवे स्टेशन, इन सब का पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन कब हुई, रॉकेट्स कहाँ से है, सैटेलाइट्स, ठीक है, मशीनरी, ठीक है, छोटी सी छोटी चीज़ की इन्वेंशन फ़िज़िक्स में हुई है, ठीक है। फिर खुदा ने क्या कहा कुरान में कि मैंने ये ज़िंदगी बनाई है, मैंने ये दुनिया बनाई है, ठीक है, तो तुम लोग इसमें तहकीक करो, ठीक है, तुम क्या करो, इसमें तहकीक करो, जानो, इसकी नो हाउ हो तुम्हें, कई चीज़ के क्यों है, कैसे, कहाँ से, इसका मकसद क्या है। सबसे पहले इंसान है, इंसान का मकसद क्या है। कुरान हमें क्या कहता है, कुरान सेज दैट, कुरान स्ट्रेसस, कुरान ने हमें जोर दिया, कहता है कि थिंक करो, रीजनिंग करो, ऑब्जर्वेशंस करो, ठीक है, तहकीक करो कि तुम्हें पता चले दुनिया क्या है, फिज़िक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। कुरान ने हमें क्या कहा, द सन इज़ नॉट टू ओवरलुक द मून, ठीक है। तो आप लोगों का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप सन को देखो, मून को देखो, ठीक है, या रात को देखो या दिन को देखो, ये क्यों है, ठीक है, इसके पीछे एक निज़ाम है। वो निज़ाम क्या है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं, प्लैनेट्स कितने हैं, कैसे हैं, उन पर ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, हम जहाँ रहते हैं वो अर्थ है, अर्थ में कैसी ज़िंदगी है, अर्थ कैसे आई, ठीक है। कुरान ने हमें बोला कि ऑब्ज़र्व करो, ठीक है, ऑब्ज़र्व करो, नो हाउ करो, रीजनिंग करो, थिंकिंग करो, ऑब्ज़र्व करो कि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। फिज़िक्स के ऊपर ये सब फिज़िक्स। सो हमारा डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स हो गई। नाउ what are the achievements of physics, ठीक है। different Muslim scientists have played an important role in the field of science and technology. So different scientists have first of all have who is Yaqub Kindi, what does he do, ठीक है। Yaqub Kindi was born in Basra. He had done outstanding work in the field of meteorology, specific gravity, tides, ठीक है, टाइड्स क्या होती है, लहरें, ग्रेविटी क्या है, ज़मीन की जो मकनातीसी पावर है वो, ठीक है, ग्रेविटेशन हमारे पास पावर है। व्हाट इज़ ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब लेंसेज को स्टडी करना, ठीक है। गिव्स अस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग याकूब किंदी ने पढ़ा। याकूब किंदी ने क्या किया, ग्रेविटी के बारे में बताया, ठीक है, लाइट के बारे में बताया, ऑप्टिक्स के बारे में बताया, ठीक है, टाइड्स के बारे में बताया, मेट्रोलॉजी, ये सारी मेट्रोलॉजी में किसने दी, याकूब किंदी ने। नाउ सेकेंड वन इज़ इब्न अल हैतम। इब्न अल हैतम ने भी फ़िज़िक्स में बहुत काम किया, वो भी बसरा में पैदा हुआ था, ठीक है। उसने क्या किया था, ही इन्वेंटेड पेन, ठीक है, पिन होल कैमरा एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। याकूब किंदी ने क्या किया था, लाइट के बारे में बताया था और रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। और इब्न अल हैतम ने क्या किया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिए थे, मैथमेटिक्स दी थी, इंजीनियरिंग दी थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया, मेडिसिन्स कैसे हैं, मेडिसिन्स क्या होता है, ठीक है। वो ग्रेट स्कॉलर था अपने टाइम में, उसने ऑप्टिक्स की बुक पे काम किया था और उसकी एंड द नेम ऑफ हिज बुक वाज किताबुल मनाज़िर, ठीक है। नाउ
हु इज़ अल-बैरूनी? अल-बैरूनी इज़ द थर्ड साइंटिस्ट. बहुत सारे साइंटिस्ट थे बट वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ देम. ओके, जो आपके बुक में है. हु इज़ अल-बैरूनी? ही इज़ अफ़गानिस्तानी. ठीक, अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ था. ही डिस्कस द शेप एंड डेंसिटी ऑफ सन, मून, अर्थ, प्लैनेट. इसने मून, अर्थ, सन, प्लैनेट्स पे काम किया था. उसने कुछ 150 बुक्स लिखी थी मैथ्स पे, फिज़िक्स पे, जियोग्राफी पे, कॉस्मोलॉजी, हिस्ट्री, रिलीजन, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है, इसने इस पर सारी बुक्स लिखी. फिर उसने मेजर काम किया मून पे काम किया, सन पे काम किया, प्लैनेट्स में काम किया. नाउ अब्दुल ने क्या किया? वो अब प्रोफेसर था. ठीक है, वो 1926 में बॉर्न हुआ था. ही स्टडीड, उसने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा था इन लाहौर. ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइजेज इन फिजिक्स इन 1975 ऑन द वर्क ऑफ ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी. उसने एक थ्योरी पेश की थी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स फॉर ट्रस्टी, इटली. ठीक है, उसने बहुत काम किया था फिजिक्स पे भी. ठीक है, अब्दुल कदीर खान वॉज बॉर्न इन भोपाल, इंडिया. ठीक है, ही गॉट हिज PhD फ्रॉम लेवन यूनिवर्सिटी, बेल्जियम. ही स्टार्टेड एन एक्सपोर्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड in the enrichment plants. He returned Pakistan due to his great zeal of petroleum. He worked in a great nuclear scientist. He's a great nuclear scientist and he have been awarded he has been the government of Pakistan. He is awarded by the जमगाए इम्तियाज़ by the government of Pakistan. He has been worked so much. ये आप अपने बुक में each and every explanation आपको provided होगा. Okay. Now, what are we going to study next? Branches of physics. हमारे पास फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है. What is mechanics? Mechanics क्या होता है? Mechanics is the branch of science. ठीक है, मैकेनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? मोशन, मटेरियल की मोशन को. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज नोन एज मैकेनिक्स. फॉर एग्जांपल फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कोई दरख्त से कोई फ्रूट नीचे गिर रहा है. क्यों गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से. कहाँ से ग्रेविटी? क्या चीज़ है ग्रेविटी? ठीक है, फोर्सेज, मटीरियल्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में. ठीक है, वेट के बारे में, वो नीचे गिरी है, उसके वेट पे नीचे. ठीक है, क्यों गिरी है, किस वजह से स्पिनिंग करें ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड क्यों करें, इसमें ये सब मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स इज एक्चुअली मोशन. ठीक है, नाम से पता चलता है मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन थिंग्स. ठीक है, ग्रेविटी. नाउ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज द सेकंड ब्रांच. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर. ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से ही पता चलता है कि हीट के ऊपर काम किया गया है. ठीक है, नेचर के ऊपर, हीट के ऊपर. ठीक है, हीट कैसे आई, एनर्जी में फॉर्म में क्यों कंप्लीट होती है, फ्रीजिंग क्या, मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग क्या है. ठीक है, इंजन्स में क्या यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता है. दैट इज़ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. ये मोशन है, इसमें हीट के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में, इसमें मोशन के बारे में. ऑसिलेटरी एंड वेव्स आपको पता है क्या होती है, ऑसिलेटरी. ठीक है, इसमें क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्लो एंड मोशन, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ना. ऑसिलेशन, वेव्स, चीज़ हिलती क्यों है, मास स्प्रिंग सिस्टम देखा होगा. ठीक है, उसका ट्रू एंड फ्लोशन. वाटर वेव्स किस तरह मूवते हैं, वो जो समंदर में लहरें होती हैं उसके बारे में. ठीक है, साउंड्स के बारे में, ये इफेक्ट्स के बारे में, साउंड वेव्स के बारे में, वेव्स के बारे में पढ़ा. ऑसिलेटरी एंड वेव्स में हम लोगों ने वेव्स पढ़ा है जो ट्रू एंड फ्लो मोशन करती हैं, मास अटैच विद स्प्रिंग एंड समथिंग, बहुत सारी डिफरेंस होती हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी, हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर्स में है. व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? इसमें लाइट के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, dispersion, each and everything. Optics is only study of light. ठीक है, now electricity and magnetism is the next branch of physics. electricity के बारे में, बिजली के बारे में. ठीक है, चार्ज क्या होते हैं, मोशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, सर्कुलेटरी, मैग्नेट्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है. ठीक है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इस ब्रांच में. नाउ what is another branch? Atomic and nuclear physics. What is atomic and nuclear physics? The branch of physics which deal with the structure and properties of individual atoms and atomic nuclei. Atomics मतलब atoms, x-rays, machines, laser, nuclear reactors, MRI, CT scan, each and everything atom से related, nuclear physics से related. ठीक है, bombs, ये सारे हम लोग जो है न्यूक्लियर पावर. ठीक है, आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है हाईएस्ट रैंक पे है इस पर. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग एटॉम्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज़ रिलेटिविटी? व्हाट इज़ रिलेटिविटी? इट डील विद द ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरी हाई स्पीड. रिलेटिविटी मतलब स्पीड में, किस स्पीड से जा रही है कोई चीज़. ठीक है, कोई पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. ठीक है, किस स्पीड से आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, इसको हम रिलेटिविटी में स्टडी करते हैं ना. क्वांटम, व्हाट इज़ क्वांटम? क्वांटम इज़ द थिंग, क्वांटम इज़ द
वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्वांटा को स्टडी करते हैं. क्वांटा इज़ अ पार्टिकल, ठीक है. क्वांटा इज डिस्क्रीट इनडिविजिबल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट एंड इनविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. इनविजिबल, इंडिविजिबल, ठीक है. इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है. व्हाट इज एग्जाम्पल, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं क्वांटम में. हम एटम्स को, एटम्स के पार्ट्स को, न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वांटम फिजिक्स में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है. चीज़ें जिनको हम एज्यूम करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हम देख नहीं सकते, ठीक है, इनविजिबल होती हैं. व्हाट इज़ पार्टिकल फिजिक्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्वार्क्स क्या हैं, लेबनॉन्स क्या हैं, फोनॉन्स क्या हैं, बोजॉन्स क्या हैं, ये पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है. इट इज़ अ फुल, ये ईच एंड एवरीथिंग की एक एक बुक होती है, ठीक है. इस सब्जेक्ट की हर एक बुक्स होती हैं, फिर इन बुक्स की फर्दर बुक्स होती हैं, ठीक है. ये जो फिजिक्स की ब्रांचेज हैं इन पर पूरी पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है. नो, व्हाट इज़ बायोफिज़िक्स, व्हाट इज़ मेडिकल फिज़िक्स, ठीक है. बायोफिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स, बायो पढ़ते हैं, मेडिकल फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरेक्शन पढ़ते हैं, इनका प्रोसेस क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस, प्रिवेंशन, हेल्थ के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, व्हाट इज़ MRI, व्हाट इज़ एक्सरे, व्हाट इज़ सिटी स्कैन, कंडक्शन, लिविंग थिंग्स में क्या होता है, इसको ये बीमारी कैसी है, क्यों है, किस तरह ठीक होगी, मेडिसिन, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है. सो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है. आगे हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक में जाएंगे वो हमारा है फिज़िकल यूनिट, क्वांटिटीज़, यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं, वो डेराइव कहाँ से हुए, ठीक है. सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं उनके, ये सारी चीज़ें हम लोग फिज़िक्स में आगे पढ़ेंगे. आपके चैप्टर में ये सब कुछ है, ठीक है. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो फिर आई गेस इंट्रोडक्शन आपको सुन के मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, फैक्ट, राइट. सो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया फ़िज़िक्स का, फ़िज़िक्स क्यों ज़रूरी है, फ़िज़िक्स कैसे आई, ठीक है. ये डिफरेंट कुछ साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, बट हम लोग सिर्फ 5 के बारे में पढ़ रहे हैं बिकॉज आपके बुक में सिर्फ यही दिए हुए हैं. और बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, फ़िज़िक्स बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड है फर्दर इनके अलावा भी, बट ये मेन है, ठीक है. सो आई होप यू हैव बीन स्टडीड, आपको समझ आया होगा, आप स्टडी करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है. और फिज़िक्स में अपना इंटरेस्ट लेके आओगे. इट इज़ ओनली स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी नेचर को स्टडी करना इज़ रियली इंटरेस्टिंग थिंग. सो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. हम अपने हमारे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.